Hello everyone. In the last videos, we have done about the T ratios of some specific angles. Those specific angles are the 5 angles we have discussed: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. 30, 60 and 45. We have done proofs also, and we have also discussed 0 and 90 degree. When an angle approaches 0 degree, what are the T ratios for 0 degree? When angle approaches 90, then what are the T ratios for 90 degree? So we have discussed all these T ratios, क्या क्या values होती है किस किस angles पे, that we have also discussed, and in the end we have made one table to learn these values, right? And if you remember carefully, then we have done that table for only 3 T ratios: sine, cos and tan only, and we have seen how to make that table. We have done one hit and trial method to make that table, ठीक है, and that is very easiest method, and you can make that table yourself in just 1.5 to 2 minutes, right? Whenever you need to see those values, if you don't remember those values, then you should always see the self-made table, not the table that is given in the book, ठीक है? सेल्फ मेड टेबल जो आपने बनाया है उसी को रेफर करें, आप उसी को बनाएं। एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत इजीली आपको वो लर्न हो जाता है दैट हाउ टू मेक दैट टेबल। हमें सिर्फ साइन कॉस टैन ही बनाना है, बिकॉज अदर 3 आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज। साइन रेसिप्रोकल इज कॉस सीकेंट, राइट? साइन के टेबल से मिल जाएगा। कॉस रेसिप्रोकल इज सीकेंट, कॉस के टेबल से मिल जाएगा। एंड टैन रेसिप्रोकल इज कॉट, वो टैन के टेबल से मिल जाएगा, ठीक है? नाउ वी विल स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज 8.2 एंड दिस इज we are asked to evaluate the T ratios of some these trigonometric terms, trigonometric expressions. We are asked to evaluate using those values of the T ratios which we have done. Table refer करना है. I have taken only 3 parts जो main parts हैं. It contains 5 parts. Remaining you can do it easily. I have taken 3rd, 4th and 5th part. Now see the 3rd part. First part. It is cos 45. I'm writing it again here, over secant 30 plus cos secant 30. I just need to put the values of these respective T ratios and then simplify algebraic calculations. Cos 45, remember 1 over root 2. Secant 30 reciprocal of cos 30. Cos 30 is under root 3 over 2. So secant 30 obviously 2 over root 3. Cosecant is reciprocal of sine. Sine 30 is 1 over 2. Cosecant 30 is 2. I can add it 2 over 1. ठीक है, ये मैंने values fill कर दी. Now let us simplify. So here LCM in the denominator, it is LCM. What is that? Root 3. This is 2 plus 2 root 3. ठीक है, अब रेसिप्रोकल में जाएगा ऊपर 1 over root 3 into root 3 over 2 plus 2 root 3. So it becomes root 3 under root 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, it becomes 2 under root 2 plus 2 under root 2 into under root 3 under root 6. So ये आया सिंप्लीफाई करके। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि whenever the denominator is in irrational form then we need to rationalize that, ठीक है? वैसे ही जैसे हम 10th में 9th में rationalize करते थे फर्स्ट चैप्टर में, वैसा ही काम करेंगे। Let's rationalize बायनोमियल है तो इसका RF क्या होता है? RF means rationalizing factor, जिससे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर रैशनल बन जाता है। तो बायनोमियल में तो सिंपल ही होता है, सेम रिमेन सेम, बट यू जस्ट हैव टू चेंज दिस साइन। सो इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए व्हाट इज द RF? इट इज जस्ट चेंज द साइन हियर, 2 root 2 minus 2 root 6 over 2 root 2 minus 2 root 6. Now let us simplify this. Under root 3 into 2 root 2 minus 2 root 6 upon, this is always a plus b, a minus b. What is the identity used here? A square minus b square. That is 2 root 2 square minus 2 root 6 square.
ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई, टेक रूट 3 इनसाइड, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 अंडर रूट 18, उसके अगले स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू रूट 6 स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24। जस्ट थोड़ा सा बचा सिंप्लीफाई करने को अब हमारे पास, सी 2 रूट 6 माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाता है 3 रूट 2, 3 रूट 2 ओवर इट इज माइनस 16। ठीक है, नाउ इन द न्यूमरेटर आई कैन टेक 2 कॉमन, इससे कटेगा, टेक 2 कॉमन, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 ओवर माइनस 16, 2 8 16, बस ये माइनस अंदर ले जाना ऊपर, इट बिकम्स, जब आप माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो अंदर साइन सारे चेंज हो जाने वाले हैं, प्लस ओवर 8। दिस इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट। Now we'll see fourth part जिसमें just fill the values, let's fill the value and उसके बाद देखते हैं sin 30 1 over root, sorry it is only 1 over 2, tan 45 1, cosecant 60, reciprocal of sin 60 under root 3 over 2, so cosecant 60 is 2 over under root 3, secant reciprocal of cos 30 is under root 3 over 2, reciprocal again 2 over root 3, cos 60 is 1 upon 2, and what is cot 45 is reciprocal of tan 45 is 1, so cot 45 is also 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर में एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या आया जी एलसीएम, इट इज 2 under root 3, so what we get, it is under root 3 plus 2 under root 3 minus 4। ठीक है, सिंपली एलसीएम लिया हमने, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, what is the LCM again, 2 times under root 3, so 4 plus under root 3 plus 2 under root 3। ठीक है, एलसीएम ले लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स क्लब होनी है, सही, अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इट इज़ 1 अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 बिकम्स 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखना ध्यान से, पहले रूट 3 वाले देखूँ, रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अगेन 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, ठीक है, ओवर 2 रूट 3, सिंप्लीफाई हो गया, अब रेसिप्रोकल में ले जाओ, सो 3 रूट 3 माइनस 4 ओवर 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 ओवर 3 रूट 3 प्लस 4, दैट 2 रूट 3 कैंसल्स, ठीक है, इट इज 3 रूट 3 माइनस 4 ओवर 3 रूट 3 प्लस 4, ये आया सिंप्लीफाई करके, एंड यू नो व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा इसमें, वी नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और किससे, यू नो बायनोमियल है तो सेम, जस्ट चेंज द साइन ऑफ कनेक्टर, कनेक्टर होते हैं प्लस एंड माइनस साइन, किससे रैशनलाइज होना है जी, 3 रूट 3 माइनस 4, रैशनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ ऊपर देखें जरा तो इट इज़ a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, इट इज़ 3 रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी ओवर 3 स्क्वायर 9 and into 3 27 minus 4 square is 16. 9 into 3 again 27 plus 4 square is 16 minus 2 3s are 6 4s are 24 root 3 upon 27 minus 16. What is that? 11. 27 plus 16 43 minus 24 root 3 over 11 is the answer of fourth part. Now we'll see the fifth part of this. I have written here. Let's put the values. 5 times cos 60 1 over 2 स्क्वायर भी है साथ में तो 1 over 2 का स्क्वायर. 4 times secant 30 reciprocal of cos 30. Cos 30 is under root 3 over 2, secant 30 2 over under root 3. स्क्वायर भी है साथ में, प्लीज ध्यान रखें. tan 45 1 स्क्वायर भी है. sin 30 1 over 2 स्क्वायर राइट प्लस cos 30 root 3 over 2 square right. Then let's simplify this. 5 times 1 over 4 plus 4 times 4 over 3 2 square 4 root 3 square 3 minus 1 upon 1 over 4 plus 3 over 4. Now let us simplify this. 5 upon 4 ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे इसको. Here it is 5 over 4 plus 16 over 3 minus 1 upon नीचे एलसीएम ले लूँ 4 it is 1 plus 3. ऊपर भी अभी एलसीएम लेंगे हम न्यूमरेटर में. What is the LCM and numerator? 12. ठीक है. 15 plus 64 minus 12. This is 4 over 4 और 4 over 4 कितना होता है 1, मतलब डिनोमिनेटर एक तरह से ख़त्म हो गया 1. So this is 64 plus 5 69 79 minus 12 over 12. What is 79 minus 12? 67 over 12 is the answer to this question. Now we are going to discuss question number 2. Very important question, MCQs form. First part question is choose the correct option and justify your choice. हमें इनमें से correct option choose करनी है और justify करना है कि why it is so. First question 2 tan 30 over 1 plus tan square 30. Simply value put करके देखते हैं. 2 tan 30 is it is 1 over root 3 upon 1 plus tan square 30 again 1 over root 3 square. Simplify 2 over root 3 upon 1 plus 1 over 3. So this is 2 over root 3 upon 3 plus 1 over 3. LCM लिया 2 over root 3 into 3 over 3 plus 1 is 4. मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको. So this is 2 3 over 2 times under root 3. अब ये वैल्यू सिंप्लीफाई तो हमने कर लिया. ये वैल्यू इन तीनों में से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाया था ना वैल्यूज़ का, उसमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करती है. ये वैल्यू होती ही नहीं है किसी की. तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बट वी कैन डू सिंपली रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को. रूट 3 है ना यहाँ, इस 2 को रहने देना ऐसे ही. रूट 3 से इसको रैशनलाइज करना ज़रा. सो ये बन जाएगा 3 रूट 3 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और 3 कैंसल्स. व्हाट इज दैट? अंडर रूट 3 ओवर 2. ये आया सिंप्लीफाई करके. ये तो होती है हमारे टेबल पे वैल्यू. अब देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में से किसकी है ये वैल्यू. साइन 60 इट इज अंडर रूट 3 ओवर 2. सिर्फ साइन 60 की ही ये वैल्यू होती है. तो विच इज द राइट ऑप्शन? इट इज साइन 60. सेकेंड
tan 45 1 1 plus 1, so this is 1 minus 1 over 1 plus 1 2, 0 over something, 0 over something is always equal to 0, so 0, so which is the right option here? D. D is the right option. थर्ड देखना जरा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है. He says sin of 2a, here the angle is 2a equal to 2 times sin of angle a. यहाँ एंगल है 2a, यहाँ एंगल है a. He said कि sin 2a will be equal to 2 times sin of angle a is true if. बताओ ये a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा. यहाँ a की मुझे 4 वैल्यूज दे रखी हैं, तो इन में से a की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा. क्या करना क्या है, 1 by 1 डाल के देखते हैं. इन चारों में से किसी एक के लिए ट्रू होता है. लेट अस सी. पहले कौन सी वैल्यू दी है, 0. 0 पुट करके देखें. मैं इधर रब कर दूं, सो 0 पुट करूं. साइन 2 इंटू 0, a की जगह 0 डाल रहा हूं बस. 2 टाइम्स साइन ऑफ 0, साइन 2 इंटू 0 दैट इज 0. साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0. डन. इट इज ट्रू फॉर विच वैल्यू ऑफ a, ओनली 0. सिर्फ 0 के लिए ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होता. ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट, इट इज अगेन वैल्यूज डाल के देखेंगे. हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे. 2 tan 30 1 over root 3 over 1 minus 1 over root 3 square, 2 over root 3 1 minus 1 over 3. ठीक है. सो 2 over root 3, 3 LCM 3 minus 1, 2 over root 3, 2 over 3. सिंप्लीफाई, रेसिप्रोकल में जाएगा. 2 over root 3 into 3 over 2. So it is 3 over root 3, राइट. और 3 over root 3 भी वैल्यू नहीं होती हमारे पास टेबल में. रैशनलाइज कर लेते हैं तो रूट 3 से. इट इज 3 root 3 over 3. ठीक है. कट के कितना आया, रूट 3. और रूट 3 तो होती है हमारे टेबल में वैल्यू, और रूट 3 किस में होती है, tan वाले कॉलम में होती है. लेट अस सी. cos 60 नहीं, क्या होता है cos 60 1 over 2. sin 60 अंडर 3 over 2 होता है, ये भी नहीं है. tan 60 is root 3. so which is the right answer? C, that is tan 60. Now we'll see question number 3 of this worksheet. Question 3 says that if tan of a plus b equals to root 3 and tan of a minus b equal to 1 over root 3, where a plus b, sum of a plus b, a and b lies between 0 and 90 degree. ठीक है. and a is greater than b, जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा है. then find the values of a and b. यहाँ देखना ध्यान से. फर्स्ट मुझे दिया क्या क्या है, दो चीज़ें मेन है. tan ऑफ a प्लस बी रूट 3 एंड सेकेंड दिया है tan ऑफ a माइनस बी. व्हाट इज दैट, 1 over root 3. राइट. टी रेशियो कंटेन्स टू थिंग्स. वन इज ऑपरेटर एंड अदर इज एंगल. दो ही चीज़ें होती हैं. ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर 6 हैं, साइन कॉस टैन कॉस सेकेंड सेकेंड कॉट. ऑपरेटर के साथ जो भी लगा होता है, जो भी a प्लस बी प्लस सी, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, जो भी ऑपरेटर के साथ लगा होता है वो एंगल होता है, वो थीटा होता है. ठीक है. जो भी अटैच्ड है, सिंगल टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, व्हाटएवर इट इज, दैट इज एन एंगल ऑलवेज. ठीक है. उसको थीटा मान लेना थोड़ी देर के लिए. tan ऑफ दिस एंगल इक्वल टू रूट 3. किस एंगल पे, ये है एंगल, tan के साथ एंगल क्या है, a प्लस बी. किस एंगल पे tan रूट 3 होता है, टेबल फिर से. रूट 3 किस एंगल पे होता है, इट इज 60 डिग्री. दैट मीन्स हियर द एंगल इज 60 डिग्री. व्हाट इज द एंगल, a प्लस बी. सो दिस इंप्लाइज द थीटा विच इज a प्लस बी हियर 60 डिग्री. टेक इट इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही tan ऑफ थीटा, हियर द एंगल इज a माइनस बी. tan किस एंगल पे 1 over root 3 है, टेबल से अगेन
दैट इज 30 डिग्री। tan 30 होता है 1/√3। सो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो चुकी होगी बातें आपकी। इट इज tan 30 पे होता है ये एंगल, सो वैल्यू इज 30। ठीक है, आई थिंक शुड बी क्लियर। tan ऑफ सम एंगल इक्वल टू √3, किस एंगल पे? 60 पे, दैट मीन दिस एंगल इज 60 डिग्री। tan of some angle 1/√3, what is that angle equal to? Obviously 30 डिग्री। यहाँ एंगल a माइनस बी था वो 30 आ गया, यहाँ एंगल a प्लस बी था वो 60 आ गया। एलिमिनेशन मेथड, we can simply get the values of a and b. Let us add the two. So a plus b 60 and a minus b 30. Add b cancel, a plus a, 2a equal to 90. What a comes? 90/2, that is 45 डिग्री। और किसी एक इक्वेशन में डाल दें ये वैल्यू, 1 में डाल देता हूँ। a 45 प्लस b इक्वल टू 60 एंड what b is? b comes 15 डिग्री। So this is the solution of question number 3. Now we'll see question number 4. Again, जो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वेयर वी आर आस्क्ड टू जस्टिफाई आवर आंसर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही होते हैं जो मैंने पहले भी समझाया था आपको। ये क्वेश्चन होते हैं कि हमने उस कंसेप्ट को कितना अंडरस्टैंड किया है, हमने उस कंसेप्ट को कितना समझा है, उस पे बेस्ड होते हैं। अगर हमने कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है तो ये क्वेश्चन वी कैन डू। ठीक है, अगर हमारे कंसेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गई है तो ये क्वेश्चन फिर एक तरह से गैस वर्क ही हो जाता है कि गैस ही करना कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। सो एक क्वेश्चन समरी होता है उस कंसेप्ट की जो हमने करा है। नाउ लेट अस सी दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट, ट्रू फॉल्स बताना है। साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बोलूँ, देखो हुआ क्या है इसने करा क्या। आई कैन से कि साइन को इसने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। ऑपरेटर कभी भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता ही नहीं है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक, इन दो क्वेश्चंस को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब वो टेबल रेफर करना है आपने, जो हमने खुद बनाया हुआ टेबल है उसको देखना है। क्या साइन और कॉस हमेशा थीटा की सभी वैल्यूज पे इक्वल होते हैं? इन दैट टेबल वी हैव सीन कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा सिर्फ एक वैल्यू पे इक्वल वैल्यूज रखते हैं। कौन सी एंगल होता है वो? एक ही एंगल पे इक्वल वैल्यूज होती हैं उनकी, दैट इज 45 डिग्री। बाकी सभी एंगल्स पे इनकी वैल्यू डिफरेंट होती हैं। तो ही सेड कि फॉर ऑल एंगल्स थीटा, इट इज नॉट ट्रू, अगेन इट इज फॉल्स। ठीक, एंड द लास्ट, कॉट ऑफ ए is not defined at a equal to 0, मतलब cot 0 is reciprocal of tan 0, tan 0 is 0. What is cot 0? 0 का reciprocal is not defined. इसने भी ऐसा ही बोला है, it is not defined at a equal to 0. This is true. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये थोड़ा सा मैं करके बताऊंगा इसकी वैल्यूज आपको। इसने बोला क्या है, पहले साइन के कॉलम की वैल्यू याद रखना जो हमने टेबल पे बनाया है। ठीक है, साइन 0, साइन थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 पे तो 0 ही था, 30 पे 1/2, उसको डेसिमल में निकालो तो क्या होता है 0.5। मैं डेसिमल में निकालूंगा इनकी वैल्यूज। 45 पे 1/√2, थोड़ा इसका रैशनलाइज करें तो ये बन जाता है √2/2। √2 की वैल्यू 1.414 होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 डेसिमल्स तक। ठीक, 2 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेट में सिर्फ 1 डेसिमल तक लूंगा। क्या आ गया? 0.7। सो ये आ गया 0.7। साइन 45 अप्रॉक्सीमेटली 0.7 अप टू 1 डेसिमल आई हैव टेकन। साइन 60 √3/2, √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 3 डेसिमल तक? 1.732, और उसको 2 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली 0.8। आगे भी है लेकिन मैं सिर्फ 1 डेसिमल ले रहा हूँ।
कि जो मुझे चाहिए, जो मैंने यहाँ से कंक्लूड करना है वो यहीं से बता दूंगा मैं, ठीक है। और साइन 90 तो यू नो 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ली मैंने, वैल्यूज डेसिमल में ले ली। साइन 0 0, साइन 30 0.5, साइन 45 अप्रॉक्सीमेटली 0.7, साइन 60 अप्रॉक्सीमेटली 0.8, नॉट एग्जैक्ट रिमेंबर, अप्रॉक्स, एंड साइन 90 तो 1। अब देखना जरा पैटर्न, एज थीटा इंक्रीजेज, यहाँ एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या हो रही हैं, सही, 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1, the values also increases. So that means the value of sin theta increases as theta increases. That we have seen. This statement is true, obviously. जैसे ही एंगल इंक्रीज होता है, साइन की वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड। रिमेंबर कॉस के टेबल में वैल्यूज कैसे लिखी थी, अगर आपको याद हो तो यही वैल्यूज लिखी थी, बट इन द रिवर्स ऑर्डर। इनको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, मतलब कॉस के टेबल में 1, 0.8, 0.7, 0.5 एंड 0। देखो तो जरा ये क्या हो रहा है, एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यूज डिक्रीजेज। कॉस थीटा ऑपोजिट होता है साइन के, ठीक है, मतलब वैल्यूज की टर्म्स में ये कॉस थीटा साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बट कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ क्या बोला है इसने, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स, इट एक्चुअली डिक्रीजेज। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्कशीट 8.2। आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी लगे होंगे आपको, ठीक है। मैंने उसी वे से करवाने की कोशिश की है, ईजीएस्ट पॉसिबल वे से करवाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। थैंक यू।